Okay. So once again, now we will start our classes and we will start with the sentence making. Some what is called what we had studied yesterday, that we discussed difference between present simple tense and present continuous tense. Present simple tense is, it is simple tense where we can know the work, the actual status or the condition, but the work has not been started. But the present continuous tense is already work has started, it is in process. It is in process and progress. ठीक है, ये कंटिन्यू है, चल रहा है, जो काम शुरू हुआ, पढ़ाने का काम शुरू हुआ है और अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। जो भी क्रिया चलता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा, वर्ब कौन सा लगेगा वो समझे, हमने फार्मूला कल लिखा था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल आर able to make affirmative sentence in present continuous tense. Are you able to make? Yes. Can you speak? Yes. Huh? Yes. Can you make the sentence? Yes. Affirmative sentence of present continuous tense. So what will be, anyone, one sentence can you say me? Can you tell? Huh? What? Speak loudly, anyone. Any one sentence. Ram is playing cricket. See, these many are, you are sitting and silent. When we are asking, then you should raise your voice. Or did you forget? भूल गए कि कैसा? एक जो जवाब दे रहा है, बाकी सब ऐसा देख रहे हैं, एक सेंटेंस बताओ मुझे। सबके मुंह से एक एक सेंटेंस निकलना चाहिए ना। हाँ, चलिए सब लोग बताइए एक एक सेंटेंस क्या है, सब एक साथ बोलना चाहिए, अपना अपना सेंटेंस बोलिए। C is making for. Speak others also. Make other one sentence. सामने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? बताइए भाई। We are reading. We are reading. Then She is writing. she is writing. They are watching. They are watching. They are going to market. Very good. We are running very slow. We are running very slow. Good. You are Then- drinking water. Yeah, you are drinking water. Then आप लोग भी बोलिए कुछ। घनश्याम is going to school. Rohan is eating food. Very good. Satyaprakash is reading book. Yeah. Satya Prakash is reading book. Okay. Then Jason is speaking. Blessing is speaking English. Here they are making sentences. Then, okay, these are the affirmative sentences. ठीक है? Then today we will learn how to make negative sentence. What? ठीक है? Negative sentences. Negative sentences of present continuous tense. In which tense we are making negative sentence? Present continuous tense. So remember that. Okay? Yes. So one more thing I want to tell you. If you remember, I would like to ask all of you that in present simple tense, when we were making negative sentence, what was the sentence making structure? Subject plus. For negative sentence.
अरे लेट कर दी बेटा। क्या है और नेगेटिव सेंटेंस? हाँ या क्या क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएंगे? उसमें है ना हेल्पिंग वर्ब टू और प्लस था। अब इसमें देखेंगे उसके बाद क्या था? प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ना, क्या प्लस नॉट प्लस या इन दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर भी सेम मेथड है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बट द हेल्पिंग वर्ब विल बी am, is, are. Okay, and then not, and then not, and after that ing form of the verb, ठीक, plus object and full stop, last full stop. समझ रहे हैं? This is the structure for negative sentence. It is very easy. If once you will keep in your mind, then it will be very easy to speak English. ठीक है? यदि एक बार आप अपने में माइंड में रख लेंगे इसको, तो आपको इजी हो जाएगा। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब ईश्वर भाई आपको समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट आप सुने थे पहले कभी अंग्रेजी में? नहीं सुने थे? अरे यार कोरोना मार खिला दिया आपको, क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो आदमी काम कर रहा है सेंटेंस में। जैसे बोलते हैं ना मैं, हम, आप, वे, वह, सीता, गीता बोलते हैं ना, ये सबको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और बाकी को हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं एम, इज, आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक, ओके, सॉरी। ओके, अब इसमें एक सेंटेंस बनाइए। हमको ऑलरेडी मालूम है कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मालूम है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मनीषा, राखी, आकाश, समझ में आ रहा है? और इधर वाले रिहान, रिशु, क्या नाम है? आर्यन, आप लोग को मालूम हो रहा है? नवीन, समझ में आ रहा है ना? यह सब्जेक्ट यदि आई रहेगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम। यदि सब्जेक्ट ही रहेगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज। यदि सब्जेक्ट यू और वी और दे रहेगा तो आर। ये चीज को नहीं बोलने का, डोंट फॉरगेट इट। एंड एवरीवेयर डोंट से आर आर आर। सब जगह आई एम नहीं आएगा ना, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, हम लोग पास्ट टेंस बोलने के समय भी आई एम कमिंग फ्रॉम बोलने से नहीं होगा, है ना? मैं कल आ रहा था बोलने के लिए आई एम कमिंग नहीं बोलेंगे। आई एम कमिंग कब बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस में। कब बोलेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में। मैं मुझको कोई फोन किया कि कहाँ पर हो, तब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जस्ट आई एम कमिंग फ्रॉम द होम। मैं आते रहूंगा तभी मैं बोलूंगा आई एम कमिंग फ्रॉम द होम। मैं कल आया था बोलने के लिए आई एम कमिंग फ्रॉम द जगदलपुर, कल बोल के नहीं बोलेंगे ना। आई एम कमिंग फ्रॉम द जगदलपुर यस्टरडे नहीं होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम द जगदलपुर यस्टरडे बोले, हाँ यू आर कमिंग, इट इज ओके। यू आर कमिंग फ्रॉम द जगदलपुर यस्टरडे बोलने से नहीं होगा। यू आर कमिंग फ्रॉम जगदलपुर यस्टरडे होगा? ऐसा नहीं होगा, तो हर जगह नहीं आएगा। सिर्फ दिस सेंटेंस कैन बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
समझ गए? आर इज एम आर ओनली फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ठीक है. सो अब बनाइए सेंटेंस. Ram is not going to school. Okay, Ram is the subject. Ram. If Ram is the subject, then what will be the helping verb? Is. Ram is. Then after what will come? Not. Not. Going. Okay, going. Going to school. Are you getting it? Yes. See? Ram is not going to school. Then, if I will put here I, then I am not going to I am not going to school. I am not going to school. If we will put subject we, we are. what? If subject is we, then We are. what will be the helping verb? Are. We are not going to school. Okay? ठीक है? If subject will be they, then what will come? If subject will be they, then what will become in here? They are not going to school. अलग अलग वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप. You can use different verbs. For that you have to memorize the verbs. ठीक है? वे पेड़ नहीं काट रहे हैं. This is in हिंदी. क्या हिंदी में क्या बोल रहे हैं? वे पेड़ नहीं काट रहे हैं. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? They are not cutting the tree. वे के लिए क्या आएगा? दे. वे के लिए दे. सो दे आ गया तो क्या हो गया? आर. दे आर नॉट कटिंग. कटिंग. कट. कट मतलब काटना होता है ना. कटिंग. कट मतलब जो कुल्हाड़ी वगैरह से काटने वाला को कट बोलते हैं. ठीक है? ये जो आरी से काटने वाला को कट बोलते हैं. लेकिन कोई दांत से काटेगा किसी को तो उसको कट नहीं बोलेंगे. He was cutting with teeth नहीं बोलेंगे. ठीक है? So don't say like this word. कोई पेड़ काटना है, कोई लोहा काटना है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? कट बोलेंगे. लेकिन दांत से कोई काटता है किसी को तो उसको बाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइट. ठीक है? ऐसा नहीं he was biting with his mouth, ऐसा भी सही नहीं है भाई. बाइट बोल दिया तो हो गया. बाइट मतलब दांत से ही काटेगा. अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुंह से काट रहा था, इससे काट रहा था, उससे काट रहा था, बोलने की जरूरत नहीं है. बाइट हो गया मतलब वो दांत से ही काटेगा. वो सामने वाला समझेगा दांत से काट रहा था. ठीक है? समझ रहे? ओके, क्लियर? कोई डाउट है नेगेटिव सेंटेंस में? है कोई डाउट? यू अभिषेक चालकी, डू यू हैव एनी डाउट? नो? पक्का? If you have doubt, then you can ask Manmohan and Pransu. And Naveen is also your friend, isn't? Manmohan बताएगा उसको? है? बताएगा कि नहीं? मनमोहन, आई एम आस्किंग यू. उसको बता सकेगा? वो पूछेगा तो. नो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आता है बोल रहा है फिर उसको नहीं बता सकता क्या? मनमोहन बता रहा, यदि सब्जेक्ट में आई होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम. पक्का? डाउट नहीं है? तो वही पूछेगा वो, यदि सब्जेक्ट में यू होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा भाई बोल के, तो क्या बताएगा? यू होगा सब्जेक्ट में तो क्या लगेगा? आर. तो फिर नहीं बता सकूंगा बोल रहा, उतना नहीं बता पाएगा. यदि फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा?
कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? यहाँ लिखा हूं मैं, कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। गो है तो गोइंग हो जाएगा, कट है तो कटिंग हो जाएगा, डू है तो डूइंग हो जाएगा, सिट है तो सिटिंग लिखेंगे हम लोग, समझ रहे? आईएनजी फॉर्म। वेयर आर यू साक्षी? Are you here? Okay, so your eyes are looking outside, staring something. Huh? So, then any doubt is here? Clear? Clear? So, after that I will ask to make the sentences. That is why I am asking you again and again. ठीक है? आप लोग को भी क्लियर है? क्लियर है? सब भाई क्लियर है कि नहीं है बताइए? सब लोग ठीक? ठीक है, नहीं तो यहाँ लिखते रहता हूँ फिर से। आई सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यदि यू वी दे है तो आर लगेगा, ही शी किसी का नेम, एंड इट है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। रिमेम्बर दिस, ठीक है? एंड यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म, वो याद रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के समय उनका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है ना? इसमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या क्या आया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्लियर? Clear? Okay, now next we will go for which? Interrogative sentence. Interrogative sentence means asking question. ठीक है? So for asking question in simple tense, what we have done? Huh? What we have done? For asking question, helping verb is to give in front of the subject. ठीक है? When we make, जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तब प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? सामने लिखते हैं, सामने बोलते हैं, और कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सीधा सामने ला देते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ हम लोग बनाएंगे ऐसा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव sentences. Interrogative sentences. Okay? Interrogative sentences. For making interrogative sentences, we will write helping verb in front of the subject. And what are the helping verb? Am, is, and are. Okay? And then will come subject. Okay? Are you getting? Helping verb plus subject plus ing form plus object. बस सिर्फ सामने का चेंज होगा मेथड। तो हेल्पिंग वर्ब में इज आर बना करके कोई सेंटेंस बना सकते हैं। Have you written this for interrogative sentence? Fast, write fast. If you will write fast, then it will be good for us. First will come helping verb. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Helping verb को, फिर subject को, उसके बाद verb का ing form, फिर object लिखेंगे। ठीक है? ठीक है? Are you clear? पक्का?
ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद रखना आप लोग, है ना। हो सके तो कभी कभी पूछूंगा मैं, formulas you need to remember, then it will be easy for you. Okay, then now make a sentence. Make a sentence. If we are asking or we are putting the subject you, then जैसे हिंदी में पूछते ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, क्या तुम आम खा रहे हो, क्या सीता बाजार जा रही है, क्या गैलेक्सी सो रही है? ऐसा पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं ना कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं, कोई पूछते हैं कि नहीं? हम लोग का हिंदी गलत है इसलिए गड़बड़ होता है। हम लोग क्या, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है बोलते हैं, वो क्या कर रही है बोलते हैं, है ना। वो क्या कर रही है भी होता है, वह क्या कर रही है, वो क्या कर रही है नहीं, वह क्या कर रही है के लिए ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा। What she is doing, that is WH question, ठीक है, that comes under WH question, okay। क्या आप आम खा रहे हो, क्या बोलेंगे, क्या आप आम खा रहे हो। ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, सेंटेंसेस, ठीक। सो हम लोग ऐसा पूछेंगे, हिंदी में है क्या आप आम खा रहे हैं, क्या आप आम खा रहे हैं, ठीक है। क्या आप गीत गा रहे हैं, हम लोग उसको उल्टा पूछते हैं, क्या आप आम खा रहे हो पूछते हैं हम लोग। ओरिजिनल में अच्छा इंग्लिश ग्रामर में बोलेंगे तो क्या आप आम खा रहे हैं, अरे गड़बड़ है, क्या आप आम खा रहे हैं, ऐसा सही सेंटेंस है। क्या आप नहा रहे हो, क्या आप बात कर रहे हैं। हम लोग हो लगा देते हैं के जगह में, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या बस आ रही है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी, बस आ रहा है क्या बोलते हैं, बस आ रहा है, बस आ रहा है, देख देख बस आ रहा है, बस आ रहा है, बस आ रहा है। अब पता नहीं वो बस आ रहा है कि बस आ रहा है, नहीं मालूम। बस कभी आ रहा नहीं होता है ना, दैट इज फेमिनाइन जेंडर, सो वी हैव टू से बस आ रही है, ठीक है। क्या आज बस आ रही है, ठीक है, ओके। तो ऐसे समय में हम लोग क्वेश्चन मार्क कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। सो आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर आप है, आप का मतलब यू। जब यू सब्जेक्ट हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। तो हम क्या लिखेंगे, आर यू ईटिंग। ये खाने का मतलब क्या है, हाँ ईटिंग। आर यू ईटिंग मैंगो, आर यू ईटिंग मैंगो। here question mark will come at the last, ठीक है। आर यू ईटिंग मैंगो। शी के साथ बनाइए, क्या वह आम खा रही है, हाँ
यदि यहाँ पर लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, क्या वह आम खा रही है, तो क्या होगा? क्या वह आम खा रही है? या लड़की है ना, लड़की के लिए क्या बोलेंगे? वह के लिए शी, फेमिनाइन जेंडर। सो शी इज, तब सामने क्या आएगा? इज सी ईटिंग मैंगो? इज सी ईटिंग मैंगो? ठीक है, आर यू वेरी क्लियर? So according to subject only, the helping verb will come in front. ठीक? And we will make the sentence in present continuous tense for negative sentence. ठीक? समझ रहे हैं? Are you clear now? Yes. अब मान लीजिए कि यहाँ सेंटेंस दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप बनाइए, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ बनाइए ना, क्वेश्चन पूछिए, अलग अलग सब्जेक्ट। मैं तो 2 सब्जेक्ट बनाए, यू एंड सी, देन देयर इज आई, है ना? क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, पूछिए अपने आप से और बनाइए उसको। यदि क्या मैं स्कूल जाता हूँ बोलूंगा, आप कैसे लिखूंगा? हैं? हाँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, सो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Am I Am I going to going to school? लिखिए उसको, you should write that. Am I going to school? I यदि आया तो भाई M के साथ शुरू होगा क्वेश्चन। क्या के साथ? M के साथ। Am I going to school? Am I not saying to you? हम लोग बोलते हैं क्या मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं आपको, क्या बोलेंगे? क्या मैं आपको बता रहा हूं? Am I not telling you? Sorry, am I telling you? क्या मैं आपको बता रहा हूं? Am I telling you? ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग को समझ में आया? Yes. तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में आप क्वेश्चन बनाइए। ठीक? ठीक है? ओके? Completed? Then now one more sentence I want to tell you. That is what? Interrogative negative sentence. Interrogative छोटा लिखा हुआ है and negative sentence. Interrogative and negative sentences. So for making interrogative and negative sentence it is same. For interrogative बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सामने लिखते हैं, है कि नहीं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने, उसके बाद प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद एसयूवी क्या के लिए है? सब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एंड नॉट प्लस आईएनजी को, बाकी सब सेम रहे। हाँ, एक चीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आके जाएगा लास्ट में, वो चीज को नहीं भूलना। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर अपन पूछेंगे, अपन ऐसा बोलते ना, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ? ऐसा बोलने के लिए एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो?
पूछते ना कभी कभी, ऐसा पूछते हैं कि नहीं? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तब हम लोग बोलते हैं नो आई एम नॉट गोइंग। तो ऐसे समय आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब आर भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब एक ही सेंटेंस में नेगेटिव भी बोल रहे हैं हम और एक ही सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग? सो मेक सम सेंटेंस बाय योरसेल्फ। आर यू एबल टू मेक सम सेंटेंस बाय योरसेल्फ? हाँ, बनाइए, कुछ सेंटेंस लिखो ना, लेट्स सी, राइट बाय योरसेल्फ सम सेंटेंस। कैसे टाइप का सेंटेंस आएगा? जैसे मैंने कहा ना, एम आई नॉट कमिंग टू होम, एम आई नॉट कमिंग टू होम, क्या मैं घर नहीं आ रहा हूं? ठीक है, शब्द प्रकार समझ में आ रहा है? सो ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट बनाकर बनाइए, सब्जेक्ट दूसरा डालिए, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार सामने में हेल्पिंग वर्ब आएगा और इधर नॉट लगेगा। ठीक, फिर सब्जेक्ट आई है, यहाँ बी बनाइए, सब्जेक्ट यू बनाइए, दे के साथ बनाइए सेंटेंस। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बनाइए, देखते हैं आप अपने से क्या कर पा रहे हैं। ओके।